Shahrukh Khan. Okay. Once again, Assalamu alaikum and good morning, everyone. Okay. So I think in the last session we have started and we were on the fourth chapter. I think on the third chapter. So that is mobile networking. Okay. We are on the 30th slide right now. So our chapter name is mobile networking, and we have gone through many topics. You can see, just a minute. That will be more feasible. Okay. So we have gone through many topics, like we have seen the MACA, that is uh, multiple access with collision avoidance. This is the protocol. This is the strategy from which we can avoid any kind of multiple access problem जो हमारे हैं उनको हम लोग remove कर सकते हैं. And all these issues like hidden terminal problem and exposed terminal problems can be avoided, can be removed from this particular MACA. Okay. So after that, we have gone through that is mobile IP. Why mobile IP is required, as I explained you in the last session only. कि भाई mobile IP हमको required क्यों है? Because we are using computer, we are using internet at our home. Okay, that is okay. But when you will go outside, because at that time there were no concept of like mobile का ऐसा concept नहीं था जिसमें mobile में आए हमारे इंटरनेट है, and we are just moving from here and there, and we are able to access the internet, emails, and we can access the lectures and everything जो भी हम लोग कर पा रहे हैं आज. So that was not possible earlier. So cause of the mobile IP, now it is possible that at any moment of time, at any place in the world, we can connect to the network, we can connect to the cloud. Okay, and we can access our items whatever we have stored on the cloud. Okay, so this is all possible because of the mobile IP. Okay, that we have seen. Because as I told you that okay, whenever you are learning a new topic, so just try to answer, try to question yourself that why this particular topic is there. Okay, so when you will answer yourself that why का answer अगर आपको मिल गया, then it is okay for you. Okay, so we have gone through the requirement also. Those requirements are compatibility for the mobile IP. Okay, for mobile IP, these are the at least मेरा ये है कंसर्न कि एटलीस्ट कम से कम आपको टॉपिक भी तो कम से कम याद रहे. ठीक है, सो दैट व्हेन एट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ टाइम जब आप लोग पढ़ेंगे तो चीजें आपको नई मतलब न्यू नहीं लगेंगी. ठीक है, तो एटलीस्ट गो थ्रो करो, कुछ थोड़ा थोड़ा टॉपिक समझने की कोशिश करो. इवन आपके पास में मतलब आप लोग अगर जितना भी अगर इग्नोर करें, बट कम से कम थोड़ा भी तो फोकस करके एटलीस्ट टॉपिक्स और उनके एग्जिस्टेंस और उनके जो वाई का जो पार्ट है, सो दैट यू मस्ट नो. ओके, सो दैट जब आप लोग पढ़ेंगे खुद से फोकस करेंगे तो आप लोग को चीजें समझने में कम टाइम लगेगा. ओके, so for this particular topic, that is mobile IP, so we have these requirements. because requirement की हम लोग बात कर रहे थे कि requirements क्या है, goals क्या है. okay, so हमारे mobile IP के requirements क्या है? compatibility, then transparency, then efficiency, then scalability, then security. Okay, as we know that security is the most integral part of any system, any mechanism. So for our mobile IP, the security system is also present in order to secure our packets. Okay, because they are going to travel from medium, they are going to travel from here and there. तो यहाँ से जा रहा है, कोई भी चोरी कर सकता है, कोई भी ईवैसड्रॉपिंग कर सकता है, कोई भी उसको कैप्चर कर सकता है. सो फॉर दैट वी नीड अ सिक्योरिटी पार्ट आल्सो, एज यू आल्सो नो दैट. ओके, नाउ दिस उसके बाद हम लोगों ने देखा था गोल भी देखा था. तो गोल ऑफ द मोबाइल आईपी कैन बी समराइज्ड एज सपोर्टिंग एंड सिस्टम मोबिलिटी. जो हमारे जैसे हमारे मोबाइल फोन्स है, हमारे दूसरे गैजेट्स हैं, तो इनको मोबिलिटी प्रोवाइड करना, इनको मतलब सपोर्ट करना, while maintaining the scalability, efficiency and compatibility in all respect with existing applications in internet protocol. तो बेसिकली जो हमारा existing infrastructure है उसको डिस्टर्ब किए बिना हमें scalability, efficiency and compatibility प्रोवाइड करना है किनको? हमारे इन जैसे एंड सिस्टम्स को. ठीक है, तो ये हमारा गोल है मोबाइल आईपी का. होप यू विल रिमेंबर दिस. सो वी हैव डन दिस अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन द लास्ट सेशन. Now we are going to start with the next topic, that is the entities and the terminologies which are involved in the mobile IP. Okay, so remember we are learning this topic, that is mobile IP, mobile IP, mobile IP. ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं. मोबाइल आईपी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम लोग ने पहला देखा रिक्वायरमेंट, देन वी हैव गॉन थ्रू द गोल ऑफ द मोबाइल आईपी, देन कमिंग टू द एंटिटीज एंड द टर्मिनोलॉजीज व्हिच आर इन्वॉल्व इन द मोबाइल आईपी.
मैं कहीं फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ बहुत, बिकॉज जितना हम लोगों ने किया वो ऑलरेडी पहले हम लोग का हो चुका था. नाउ दिस इज द न्यू टॉपिक, लेट मी नो. हम लोग फास्ट तो नहीं जा रहे दादा? अरे बोलो. नहीं ना? ओके. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है. So starting with the entities and terminologies, let me inform you that these are the terms which are very much asked in your examination also. Sorry, in Viva questions these entities and terms are asked, like what is mobile node, what is correspondent node, what is home network, what is foreign network, what is home agent, what is foreign agent, what is care of address. तो ये सारी चीजें हमारे लिए समझने की चीज है और इनको हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है. तो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल आल्सो, और यहाँ पर पूरा मेरा एक्सप्लेनेशन है. करस्पॉन्डिंग नोड, होम नेटवर्क, देन आपका फिर फॉरेन नेटवर्क, देन फॉरेन एजेंट, केयर ऑफ एड्रेस, होम एजेंट, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. और उसके बाद में फिर आईपी पैकेट कैसे डिलीवर होता है. आईपी पैकेट, आपका जो पैकेट होता है वो कैसे डिलीवर होता है, दैट विल सी विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आईपी पैकेट डिलीवरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको बहुत सारे इसके वीडियो मिल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब पर. सो यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो, बट द सेम चीज इज रिपीटेड, मतलब हर जगह पे ये चीज रिपीट हुई है, ठीक है. तो चलो वापस आते हैं हम लोग अपने अपने टॉपिक पे. सबसे पहले तो हम लोग बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं, ठीक है. व्हाट आर दीज बेसिक टर्म, and from these basic terms only we will be able to knowing, we will come to know कि how this IP packet is delivered, या फिर कैसे उनका ट्रांजैक्शन होता है, कैसे वो सिस्टम काम करता है. So that can be understood with the help of these entities and terminologies. Okay, let us start with this one. Okay, so these are the entities and the terms which are which are required to understand the mobile IP concept. Okay, and it was defined in the document, that is RFC document 3344. So this is the document RFC 3344. अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा. तो in this document these terms are mentioned. Okay, so the first is mobile node. Okay, so mobile node को हम लोग MN कहते हैं. Correspondent node, so the communication will be done between these two node. Okay, so mobile node, correspondent node. Okay, then अच्छा, correspondent node basically आपका ऐसा नोड है जो कि कहीं जाएगा नहीं, मतलब एक जगह पे रहेगा, यानी कि डेस्कटॉप लाइक थिंग. ओके, then MN, your mobile node, is a kind of entity which will move from one location to another location. ठीक है. So mobile node as a name itself indicating that mobile node, a node which is on mobile, मतलब which is mobile and which can move from one location to another location, that is mobile node. Okay, though home network, I am right now in the home network. मैं अपने खारघर, अपने एरिया मुंबई वगैरह लोकेशन पे हूँ. अगर मैं यहाँ से अहमदाबाद चला गया, ठीक है, सो दैट आई विल बी इन द फॉरेन लोकेशन, आई विल बी इन द फॉरेन नेटवर्क. ठीक है. तो जैसे मैं नई एरिया में जाऊंगा तो मेरे लिए कुछ नई चीजें लागू होंगी, नया कुछ प्रोसीजर मेरे लिए लागू होगा, दैट आई हैव टू डू. वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे. ठीक है. तो होम नेटवर्क एंड फॉरेन नेटवर्क. तो होम नेट, जाहिर बात है अहमदाबाद में थोड़ी मैं रहता हूँ, सो दैट विल बी द फॉरेन नेटवर्क फॉर मी. और मैं जापान में थोड़ी रहता हूँ, सो दैट विल बी द फॉरेन नेटवर्क फॉर मी. So that is the foreign network, and the location where I'm living right now, so that is my home network. Okay. हर नेटवर्क में एक एजेंट होता है. हर नेटवर्क में एक एजेंट होता है. अगर होम नेटवर्क में अगर है वो एजेंट, तो उस एजेंट को हम लोग बोलेंगे होम एजेंट. अगर वही एजेंट नहीं, मतलब अगर कभी फॉरेन नेटवर्क में कोई अगर एजेंट है तो वो होगा आपका फॉरेन एजेंट. ठीक है. फॉरेन होम एजेंट एंड फॉरेन एजेंट. केयर ऑफ एड्रेस, आपको याद होगा कितने लोगों ने ऐसा किया होगा. हम लोगों को तो ऐसा चलता था, क्योंकि पहले मतलब मोबाइल फोन्स नहीं हुआ, हम लोग छोटे थे तब मोबाइल फोन्स नहीं थे, और लैंडलाइन भी उतने अवेलेबल नहीं थे. बहुत कम लोगों के घरों पर लैंडलाइन फोन्स हुआ करते थे. तो हम अपना केयर ऑफ एड्रेस, अगर फॉर एग्जांपल मैं एडमिशन ले रहा हूँ कहीं पे, या मैं कहीं पे फॉर्म फिल कर रहा हूँ, या कहीं मैं हॉस्पिटल में अपना एनरोलमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर मुझे अपना एक फ़ोन नंबर लिखना होता था. ठीक है. और फ़ोन मेरे घर पे है नहीं, ना मोबाइल फ़ोन है, ना पेजर है, ना मेरे पास में लैंडलाइन फ़ोन है, BSNL, टाटा, MTNL कुछ नहीं है मेरे पास में, लेकिन मेरे घर के बाजू में किसी का हाँ, ठीक है, उसको नंबर मेरे पास में. तो दैट इज कॉल्ड एज द केयर ऑफ एड्रेस. ओके, वो हमारा केयर ऑफ एड्रेस होता था. वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है. ठीक है. अगर कोई मुझे कॉल करता था तो वो मेरे पड़ोसी फ़ोन उठाकर बोलते थे कि वो क्या आपको ये चाहिए, तो मैं होल्ड करो. फिर फ़ोन साइड में रख के हम लोग को बुलाने आते थे कि आपका फ़ोन आया है.
फिर हम जाते थे, फिर हम बात करते थे। सो दैट वाज द केयर ऑफ एड्रेस फॉर, यानी उस बंदे के लिए वो जो नंबर था वो केयर ऑफ एड्रेस, यानी कि हम अपने लोकेशन पे नहीं मिले तो हम ये वाले लोकेशन पे मिल जाएंगे। ओके, और सेकंड एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं जा रहा हूँ गुजरात जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो गुजरात में मैं अपने चाचा के यहाँ जा रहा हूँ। सो फॉर एग्जांपल यहाँ मोबाइल वगैरह कुछ अवेलेबल, अब मोबाइल आने की वजह से नाउ द थिंग्स आर वेरी 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 मच ईजियर। ओके, पहले ऐसा नहीं था, तो मैं पहले दे देता भाई देखो अगले 10 दिन मैं अपने चाचा के घर रहूंगा, विच इज इन हु लिव्स इन गुजरात, और वहां का नंबर ये। सो फॉर नेक्स्ट 10 days आई विल बी अवेलेबल ऑन दिस नंबर। तो क्या हो गया, मैं अभी मैं यहाँ अवेलेबल नहीं हूँ बल्कि मैं केयर ऑफ एड्रेस पर अवेलेबल हूँ। ओके, so that was a very very basic term. Okay, we all understand. Just for the understanding purpose, I gave you this example. So you need to mention, you need to remember these terminologies starting with mobile node, correspondent node, which are related, ठीक है। Then home network and foreign network, दोनों की जोड़ी है, ठीक है। Then home agent and foreign agent, दोनों की जोड़ी है, याद रहेंगे आपको। So these are the entities, or we can say the terminologies which are required to understand, which are required in order to understand the mobile IP concept. Okay, तो अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा है what are the terms, what are the entities which are involved in mobile IP, then धड़ाधड़ ये 7 एंटिटीज के नाम आप ले सकते हैं। ठीक है, क्या क्या है आपके मोबाइल नोड, करस्पॉन्डेंट नोड, सेकंड होम एजेंट, फॉरेन एजेंट, नंबर फिर आपका मतलब होम नेटवर्क एंड फॉरेन नेटवर्क, एंड देन लास्ट केयर ऑफ एड्रेस। ठीक है, याद रहेगा? अरे याद रहेगा, हम लोग बोलते नहीं बाबा कुछ। बहुत कम लोगों के रिस्पॉन्सेज आते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक एक हम लोग पहले देखते हैं। अच्छा पहले आपका डायग्राम समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, सो शिफ्ट F5, इसी में हम लोग करेंगे जो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका करस्पॉन्डेंट नेटवर्क है। ठीक है, तो योर करस्पॉन्डेंट नेटवर्क इज लाइक योर डेस्कटॉप कंप्यूटर। ओके, तो करस्पॉन्डेंट नेटवर्क को आप लोग बोल सकते हैं ये आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर भी है या फिर आपका सोर्स भी है। ठीक है, या सोर्स कंप्यूटर जिससे आप डेटा सेंड करेंगे। ठीक है, बिकॉज वी हैव टू शो वन एग्जांपल आल्सो कि जिसमें पैकेट आपका यहाँ से सोर्स से निकला एंड देन इट हैज मूव एंड इट हैज रीच टू द डेस्टिनेशन। ओके, और आपका डेस्टिनेशन कौन है? आपका डेस्टिनेशन कौन है? आपका मोबाइल नोड है। अच्छा, आपका डेस्टिनेशन मोबाइल नोड ही क्यों हम लोगों ने लिया है कंसिडर? इसके लिए हम लोगों ने कंसिडर किया है ताकि हम लोग बता सके कि देखो आपका पैकेट मूव हो रहा है, तो आपका मोबाइल नोड जो कि ऑन द मूव है, कभी यहाँ कभी उस जगह पर, कभी उस जगह पर, कुछ और बनने वाला था, तो कभी इस डाल कभी उस डाल, कभी यहाँ वो ऐसा भाग रहा है। तो आपका जो पैकेट है वो बराबर पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, बिकॉज आपका मोबाइल आईपी कॉन्सेप्ट ही वही है। तो विद द हेल्प ऑफ मोबाइल आईपी कॉन्सेप्ट योर पैकेट विल रीच टू द डेस्टिनेशन। दुनिया के किसी भी कोने में हो तो आपका पैकेट वहां तक पहुंच पाएगा। ठीक है, यही तो कॉन्सेप्ट है हमारा मोबाइल आईपी। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सिनेरियो समझते हैं। ठीक है, if you understand the scenario, then learning the next topic and learning the further topic will be easy for you. Okay, so imagine this is my correspondent node, जो कि already है, imagine करने की जरूरत ही नहीं है। So this is my correspondent node, और इसको मैं बोलूंगा ये मेरा सोर्स भी है, ये मेरा इन अदर वर्ड आई कैन कॉल इट एज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, इट कैन नॉट मूव, ओके, बट दिस इज द मोबाइल नोड, दिस इज द करस्पॉन्डेंट नोड, इट कैन नॉट मूव। मैं तो यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ इट कांट मूव। ठीक है, बट दिस इज द मोबाइल नोड, इट कैन मूव। ठीक है, ये इट कैन मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ओके, तभी तो ये देखो अपने होम नेटवर्क को छोड़कर, ये अपने होम नेटवर्क को छोड़कर ये कौन से नेटवर्क में पहुंच गया है? फॉरेन नेटवर्क में, बिकॉज इट हैज द कैपेबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। समझ में आया आप लोग को? अभी तक वो डायग्राम एक्सप्लेन किया नहीं मैंने। ठीक है, पहले पूरा डायग्राम एक्सप्लेन हो जाए, उसके बाद में मैं पूछूंगा, एंड आई नीड आंसर्स फ्रॉम योर साइड। ओके, आई नीड रिस्पांस फ्रॉम योर साइड दैट यू अंडरस्टैंड और नॉट। ठीक है, सो दिस इज माय डेस्कटॉप कंप्यूटर। इन अदर वर्ड आई कैन से दिस इज माय डेस्कटॉप कंप्यूटर। इन अदर वर्ड, in more other word I can say that this is the source computer. Okay,
and it cannot move. Okay, ये भी हम लोग को समझना है. So this is my correspondent network. Okay, अब जाहिर बात है जब आपका पैकेट यहाँ से निकला, ये पैकेट आपका है, ठीक है, जब पैकेट मूव्स आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर नेटवर्क और दिस पर्टिकुलर डेस्कटॉप कंप्यूटर और सोर्स आई कैन से, तो सबसे पहले उसको राउटर मिला, तो राउटर ने भाई देखा, हाँ ठीक है, ये बीच में आपकी ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है, तो ट्रैफिक पुलिस ने देखा, ओके हाँ आप कौन है, आप यहाँ से कहाँ जाना है, अच्छा आपको आपके डेस्टिनेशन पे जाना है, ठीक है, जो भी XYZ डेस्टिनेशन, ओके ठीक है जाओ. उसने उसने हम लोग को फॉरवर्ड कर दिया इंटरनेट के ऊपर. अब इंटरनेट जो क्या है, इंटरनेट एक जम्बल दुनिया है, ठीक है, एक क्या है आपका www, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, बहुत ही इसके अंदर ना बहुत सारे नेटवर्क है, बहुत सारे राउटर, सब कुछ है. तो यहाँ से आप पहुँचते 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 आप पहुँच गए अपने होम नेटवर्क के पास में. अच्छा, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट कि आपका जो डेस्टिनेशन है वो यहाँ पर होना चाहिए. क्या बोल रहा हूँ मैं, वापस से ध्यान से सुनो, ठीक है. इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट योर डेस्टिनेशन विल बी देयर इन द होम नेटवर्क इटसेल्फ. ओके, तो आपका पैकेट ढूंढते ढूंढते होम नेटवर्क पे पहुंचा, ठीक है, बिकॉज उसके पास में आईपी एड्रेस था, तो आईपी एड्रेस से भाई साहब चले गए. अब इनके पास में जो एड्रेसेस थे इनके थ्रू वो पहुंचे, तो बीच में बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड मिल गया, ठीक है, जो कि होम नेटवर्क का बाहर, मतलब होम नेटवर्क के बाहर ही हम लोग को अपना एक राउटर मिल गया, जिसको हम लोग बोलते हैं होम एजेंट, ठीक है, जो कि इस पर्टिकुलर एरिया की क्या कर रहा है, निगरानी कर रहा है, ठीक है. तो इस पर्टिकुलर एरिया में जिसको भी आना है वो होम एजेंट की मर्जी के बिना नहीं आएगा, ठीक है. सो वी हैव दिस होम. हमारे पास में कौन कौन से टर्म्स हम लोग पढ़ते जा रहे हैं वो मैं लिखते जाता हूँ. सबसे पहले तो एक करस्पॉन्डेंट नोड आया, ठीक है. सो करस्पॉन्डेंट नोड इज अ नोड विच इज द फिक्स नोड. ओके, तो इसकी जो आगे एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मैं अभी मेरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, उसके बाद में आप उसमें से पढ़ लेना, ठीक है. तो CN इज योर फिक्स्ड. ओके, CN इज योर फिक्स्ड, इट कैन नॉट मूव, इट इज अ डेस्कटॉप, और वी कैन से, अच्छा जब मैंने बोल दिया फिक्स तो वो जाहिर बात है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर ही रहेगा. ओके, नाउ मोर, ये आपका सोर्स कंप्यूटर भी आप इसको मान सकते हो, ठीक है. तो CN पढ़े हम लोगों ने. फिर आपका पैकेट घूमते 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 पहुंच गया आपके होम नेटवर्क. तो होम नेटवर्क के बाहर में एक एजेंट खड़ा था. हाँ शाप, किधर जाने का शाप, तो ये वाला शाप खड़ा था हमारा, ठीक है. सो दैट शाप वाज होम एजेंट. ओके, तो चलो भाई एक और टर्म पर समझ में आया, जो होम एजेंट की रक्षा करे, जो आपका होम एजेंट की रक्षा करे वो है आपका होम, मतलब होम नेटवर्क की रक्षा करे वो आपका है होम एजेंट, ठीक है. और उसके बाद में अच्छा एंट्री हुई, जैसी एंट्री हुई तो एजेंट ने बोला भाई साहब कहाँ जाना है आपको, वो बोलेगा भाई मुझे, अजय साहब जी तो घर पे नहीं है, साहब जी घर पे नहीं है, आपको कहाँ जाना पड़ेगा उसके लिए, भाई साहब है नहीं अभी, कहाँ गए, वो जापान गए अभी, वो इधर उधर फला फला जगह गए, ठीक है. तो ये हमारे पैकेट को पता चला, ठीक है. मैं आपको एक स्टोरी मोड में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें याद रहे, ठीक है. मोबाइल आईपी एग्जाम्पल इसका, और आईपी पैकेट डिलीवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक बार आपको थोड़ा सा स्टोरी मोड में भी अगर समझ में आ जाए देन इट इज ओके. एक बार आप रीड करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आके चले जाएगा, ठीक है. हाँ, सो हमारे होम एजेंट इन्फॉर्म अस दैट कि भाई शाबजी इज नॉट एट होम. ओके, बट वो शाबजी हमारे यहाँ पर गए, ठीक है. तो कहाँ पर गए, वो बोलेंगे भाई साहब वो तो फला फला जगह पे गए, वो तो अभी फिलहाल गुजरात में है, ठीक है. तो ये फिर हमारा पैकेट वहां से निकलेगा. अच्छा कैसे जाने का, अच्छा उसका एड्रेस ये है. तो हमारे शाबजी ने, हमारे सिक्योरिटी ने, मतलब हमारे होम एजेंट ने उसका एड्रेस दे दिया, ठीक है, वही एड्रेस है, एड्रेस पे चले जाओ. तो आपका पैकेट अब उस एड्रेस पे निकला है, ठीक है. अब उस एड्रेस पे निकला, एड्रेस पे चलते 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 पहुंच गया वो अपने फॉरेन नेटवर्क में, ठीक है. वो पहुंच गया हमारे फॉरेन नेटवर्क में. तो होम नेटवर्क आया, आपको फॉरेन नेटवर्क आया, ठीक है. अब फॉरेन नेटवर्क में आने के बाद में इसके बाहर भी, इसके बंगले के बाहर भी एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है. यहाँ पर ये होम एजेंट था, यहाँ पर कौन सा एजेंट है, फॉरेन एजेंट, ठीक है. तो यहाँ पर ये दूसरा शाबजी खड़ा था. तो दूसरा शाबजी ने बोला भाई साहब कौन है आप, रुको, ठीक है. अच्छा, ये वाला जगह पे हमारा डेस्टिनेशन नहीं मिला, हमारे पैकेट को इस लोकेशन पे डेस्टिनेशन नहीं मिला, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमारा डेस्टिनेशन, हमारा रिसीवर, वी आर द सोर्स. ओके, तो हमको रिसीवर नहीं मिला. तो रिसीवर नहीं में क्या तो मिला, तो हम लोगों ने क्या किया,
होम एजेंट से क्या मांगे, नंबर मांगे, ठीक है, होम एजेंट से नंबर मांगे कि ठीक है भाई अगर आपका यहाँ नहीं लग रहा है तो आप केयर ऑफ एड्रेस पे ट्राई कर लो, ठीक है। तो इसीलिए वो केयर ऑफ एड्रेस हम लोग आपका जो पैकेट है, आपका जो पैकेट है वो केयर ऑफ एड्रेस लेके हम लोग चले, ठीक है। तो मैं यहाँ वो पार्ट मैंने छोड़ दिया था, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा पैकेट है, ये पैकेट ने इसका केयर ऑफ एड्रेस लिया कि अच्छा भाई तुम्हारा जो रिसीवर है वो कहाँ हो सकता है, उसने बोला भैया आप ये एड्रेस पे चले जाओ, एंड दैट एड्रेस इज कॉल्ड एज द केयर ऑफ एड्रेस, ओके। तो ये केयर ऑफ एड्रेस पे हम लोग आपका जो पैकेट मूव हुआ, चलना शुरू किया, चला 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 चला, केयर ऑफ एड्रेस पे पहुंच गया। तो पहुंचे तो पता चला भाई यहाँ पे एक राउटर है, ठीक है, और वो आपका जो राउटर है वो है आपका फॉरेन एजेंट, और उससे कनेक्टेड है आपका फॉरेन नेटवर्क, ठीक है। तो फॉरेन नेटवर्क में तो आप आ गए, मतलब अंदर एंट्री नहीं किया, अभी आप बाहर ही है, फॉरेन नेटवर्क में आपने अभी तक एंट्री की नहीं है, बाहर ही है, फॉरेन एजेंट ने आपको रोक लिया, ठीक है। तो फॉरेन एजेंट ने रोका, बोलेगा भाई साहब कहाँ जाना है, बोले भाई देखो मैं गया था घर पे, लेकिन वो साहब जो है रिसीवर नहीं मिले, तो मुझे केयर ऑफ एड्रेस दिया गया था, तो मैं केयर ऑफ एड्रेस पे आया हूँ। बोलेंगे हाँ भाई केयर ऑफ एड्रेस तो सही है, ओके। तो फिर उसको चेक करेगा, सब करेगा, और उस पैकेट को ध्यान से देखना, ठीक है, उस पैकेट को वो अंदर ले लेगा, ठीक है। अब ये पैकेट आ गया हमारे किसके पास में आया, अरे बोलो किसके पास में आया, रिसीवर। रिसीवर। और यहाँ पर हमारा रिसीवर कौन है, हमारा मोबाइल नोड है, ठीक है। जिस तरीके से हमारा CN दैट इज करस्पॉन्डेंट नोड वाज सोर्स इन आवर केस, तो वैसे ही यहाँ पर जो मोबाइल नोड है हमारा, अच्छा मोबाइल नोड हमने नाम क्यों दिए इसको, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, मोबाइल नोड इसने नाम दिए कि वो एक जगह टिकता ही नहीं है, पहले यहाँ पर था आपका, वो जो नोड था, वो जो नोड था आपका वो यहाँ पर था, लेकिन वो यहाँ से घूम फिर के चला गया फॉरेन नेटवर्क में, ठीक है। तो फॉरेन नेटवर्क में चला गया, इसके लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करके, इसलिए उसका नाम हम लोग ने दिया है मोबाइल नोड। दिस इज नॉट अ करस्पॉन्डेंट नोड, दिस इज मोबाइल नोड। तो मोबाइल नोड को फिर वो पैकेट मिला, मोबाइल नोड को मिला, अच्छा। तो देखो मतलब मैं घर पे था, अब देखो मैं आपको एग्जांपल से कोरिलेट करूंगा, ठीक है। मैं घर पे था, अपने इंटरनेट यूज कर रहा था, ठीक है। इंटरनेट यूज करते करते मेरा मन कहा चाहा कि मैं थोड़ा घूम के आऊँ बाहर से, मैं मरीन ड्राइव घूम के आता हूँ, ठीक है। तो मैं घर से निकला, ठीक है। अब मैं घर से निकला, अब जितने लोग मुझसे मिलने के लिए आएंगे वो कहाँ पर आएंगे, अब जाहिर बात है अभी आप बोलेंगे सर मोबाइल है ना, मोबाइल पे फोन कर लेंगे ना, दैट इज द डिफरेंट स्टोरी, बट व्हेन वेल दे विल कम एट माय होम, ओके। तो जिनको भी मुझसे मिलना है वो मेरे घर पर आएंगे, जब मेरे घर पर आएंगे उनको अगर इंपॉर्टेंट काम होगा तो, ठीक है। तो वो घर पर आने के बाद में पूछेंगे भाई है मुख्तार, अच्छा कहाँ गए हैं, अच्छा ये मरीन ड्राइव पे हैं, ओके। तो फिर ये क्या मिल गया उन लोग को, केयर ऑफ एड्रेस मिल गया, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग दैट केयर ऑफ एड्रेस, इफ दे आर हैविंग सम इंपॉर्टेंट टास्क, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क, देन वो क्या आ जाएंगे, फिर मेरे पीछे पीछे केयर ऑफ एड्रेस पर आएंगे। केयर ऑफ एड्रेस मेरा कौन सा है, मरीन ड्राइव। तो मैं हूँ अभी फिलहाल मरीन ड्राइव पर, ठीक है। अब उन वो आए मुझे ढूंढते ढूंढते मरीन ड्राइव पर, मरीन ड्राइव पर आए, वहां पर आने के बाद में फिर मैं उनको दिख गया, ओके सर ये आपका पैकेट था, या आपको देना था, या जो भी मुझसे डिस्कशन करना रहेगा, कम्युनिकेशन करना रहेगा, तो वो मुझसे करेंगे और जाएंगे। ये हो गया केस 1, ओके। तो ये आपको समझ में आया मोबाइल आईपी कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट मोबाइल आईपी का। इवन यू आर नॉट एट होम बट यू आर देयर एल्सवेयर, ओके। तो समवेयर यू आर देयर बट आपका जो पैकेट ने आपको बराबर ढूंढा और आपको मिला। ये क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ that your packet the packet which was intended for you, so you have received that packet, okay। अच्छा case number 2, in case number 2 what will happen, साहब घर से निकले, मैं घर से निकला, मैं बोल के कि मैं मरीन ड्राइव जा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पीछे कोई मिलने आया, आधे आधे घंटे बाद मिलने आया, ठीक है। तो बंदा मुझसे आधा घंटा पीछे हो गया, सबसे पहले उसने मेरे घर वालों ने इन्फॉर्म किया कि मुख्तार नहीं इधर पर, वो मरीन ड्राइव पे। सो वो मेरे पीछे पीछे मरीन ड्राइव है। अब मैं मरीन ड्राइव पर मैं खाली 15 मिनट्स में बैठा, वहां से निकल गया, मैं चौपाटी चला गया, ठीक है। अब वहां पर जाने के बाद में वहां के फॉर एग्जांपल वहां पे उसने किसी को पूछा कि मैं यहाँ पर आया था नहीं है, तो बोले आए थे लेकिन यहाँ से चले गए चौपाटी। मेरा पैकेट वहां पे पहुंचा लेकिन वहां पे भी मुझे नहीं मिला, तो वहां से अब आएगा चौपाटी। अब ये मुझसे 15 मिनट्स लेट है, ठीक है।
15 मिनट लेट है। Sorry guys, cause of the network issues and technical glitches, I was disconnected. Can someone tell me मैं कब से मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ? कहाँ पहुँचे Just तुम? now, sir. हाँ सर, कहाँ तक? 2 मिनट पहले. Sir means yeah, around 1 or 2 minutes before. ओके, सो कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे? मरीन ड्राइव के बाद हम लोग चौपाटी पहुँच गए थे. चौपाटी पहुँचे थे, जूता घर पहुँचे थे, कहाँ तक पहुँचे थे? मरीन ड्राइव अच्छा मरीन तक ही ड्राइव, आगे अच्छा थे, मरीन हाँ। ड्राइव तक ही थे ना. ओके, चलो मरीन ड्राइव से आगे चलते हैं. Still we have 5 minutes, okay? You know why I'm moving with this example, so that you know this is the best example which can be explained with the, for understanding this topic. तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा, इसके लिए मुझे लगा मैंने किस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए. सो मैं घर से निकला था, ठीक है. मैं घर से निकला मरीन ड्राइव के लिए. मरीन ड्राइव पे मैं हूँ. Someone comes for me, okay, and they have been informed that I'm at Marine Drive right now, okay. So they come to Marine Drive, but Marine Drive पे मैं नहीं था. मतलब Marine Drive पे मैंने half an hour वो किया. 15 मिनट मैंने खाली हुए, ठीक है. देखो मैं आधे घंटे बाद कोई मुझसे मिलने आया, ठीक है, तो उसको पहुंचने के लिए भी सेम टाइम लगेगा आइडियली, ठीक है. तो 15 मिनट्स में मैं बैठा मरीन ड्राइव पे, वहां से मैं उठ गया, चला गया मैं चौपाटी, ओके. तो अब वो बंदा वहां पर आया, देखा कि कहाँ है, नहीं है, मैं नहीं था. उसने पूछा भाई मुख्तार किधर है, तो बोले कि यहाँ पर तो थे लेकिन यहाँ से चले गए, यहाँ पे अभी. अब वो कहाँ गए, तो उसको उनको फिर मिला केयर ऑफ एड्रेस. तो केयर ऑफ एड्रेस मिला, कहाँ का मिला, चौपाटी का मिला. अब वो बंदा मेरे पीछे चौपाटी आया. चौपाटी पे मैंने खाली 5 मिनट बैठा. वहां से मैं चला गया जूता घर, ओके. अब जूता घर मैं वहां पर गया, तो बंदा वहां चौपाटी पर आया, पूछा मुख्तार कहाँ है, तो बोले नहीं है. कहाँ गया, तो जूता घर गया. तो आई एम मूविंग बिकॉज आई एम द मोबाइल नोड. आई एम टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ इट, ओके, बिकॉज आई एम अ मोबाइल नोड. आई कैन मूव एनीवेयर, ओके, इन मुंबई. मैं कहीं भी जा सकता हूँ, यहाँ से वहाँ, वहां से यहाँ, वहां से यहाँ. बट आई विल गेट द सर्विस, आई विल गेट द पैकेट. कहीं पर भी जाओ, पैकेट मेरा पीछा करते करते जरूर आएगा, ओके. तो वहां से चला गया मैं चौपाट, वहां से चला गया मैं जूता घर, ठीक है, हैंगिंग गार्डन चला गया.
तो अब वहां पर चौपाटी पर आकर पूछे भाई साहब किधर है, नहीं है, थे लेकिन चले गए हैंगिंग गार्डन। अब वो बंदा मेरे पीछे आया, ठीक है, उसको मिला केयर ऑफ एड्रेस कहाँ का, हैंगिंग गार्डन का। वो बंदा मेरे पीछे आया, फिर आए, वी कम्युनिकेट, वी डिस्कस, एंड द पैकेट जो भी था वो मिला और काम कंप्लीट हुआ, ठीक है। सी हाउ दिस मोबाइल आईपी इज चेजिंग यू, ठीक है। Mobile IP, with the help of this concept that is mobile IP, it is possible that कि wherever you are, okay, कहीं पर भी जाओ but your packet will reach you, okay, जो भी destination है आप कहीं पर भी move हो रहे हैं because you are the mobile node, you are the mobile node, so you will go anywhere, okay, wherever you are going, so your packet will be reaching you, okay. So ये हमारा मोबाइल आईपी का कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू इट इज पॉसिबल टू डिलीवर अ पैकेट, ओके, टू अ मोबाइल नोड who is moving from here and there, who is moving from one location to another location, okay. So ये आपके मोबाइल आईपी से के कॉन्सेप्ट से ही पॉसिबल है, okay. आई होप ये सबको समझा होगा। समवन रिप्लाई मी। Yes, sir. Even you all can reply, Yes, even sir. you all can reply, okay, okay. So this is the concept of mobile IP. I think मैंने अभी तक कुछ एक्सप्लेन, मतलब मैंने शेयरिंग मुझे वापस करना पड़ेगी, एक 2-3 मिनट की शेयरिंग हम लोग और कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पर थे, तो ये हमारा क्लियर हुआ, ठीक है। सबसे पहले एक बार हम लोग और रिपीट कर लेते हैं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके। मोबाइल आईपी जिसको समझा ना, तो ये पूरा 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। एक मोबाइल आईपी एंड देन आईपी पैकेट डिलीवरी। एक आईपी पैकेट कैसे डिलीवर होता है, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचेगा, और डेस्टिनेशन से वापस इसका रिप्लाई कैसे आएगा, ये पूरा है आईपी पैकेट डिलीवरी। नेक्स्ट टॉपिक है, बाद में देखेंगे, लेकिन अभी ये समझा है आपको, दैट इज गुड, ओके। तो कहाँ थे हम लोग, हमारा करस्पॉन्डेंट नोड दैट इज सीएन, करस्पॉन्डेंट नोड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड नोड, पहला। सेकेंड है आपका होम नेटवर्क, ठीक है। होम नेटवर्क वो नेटवर्क जहाँ पर रिसीवर को यूजुअली होना चाहिए, ठीक है। हमारी समझ से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि होम नेटवर्क इज अ लोकेशन, इज अ नेटवर्क वेयर यूर आइडियली यूर रिसीवर विल बी देयर, ओके। सो ये हमारा होम नेटवर्क है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल वो यहाँ पे नहीं, जैसा मैं यहाँ पे नहीं मिला, मैं कहाँ चला गया, मरीन ड्राइव चला गया, ठीक है। सो दैट विल बी द फॉरेन लोकेशन एंड फॉरेन नेटवर्क फॉर मी, ओके। सो मैं फॉरेन नेटवर्क में चला गया, सो दिस इज माय फॉरेन नेटवर्क, ओके। और उसके बाद में ये जो उनके पास, उनके आसपास जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जैसे होम नेटवर्क के बाहर उसका सिक्योरिटी गार्ड जो है हमारा होम एजेंट, फॉरेन नेटवर्क के बाहर उसका सिक्योरिटी गार्ड जो कि है आपका फॉरेन एजेंट, ठीक है। तो करस्पॉन्डेंट नोड, मोबाइल नोड। करस्पॉन्डेंट नोड इज अ फिक्स्ड नोड, मोबाइल नोड इज अ मूविंग नोड। Home agent, sorry, home network is the network where ideally your receiver must be present, and foreign network is the location, is the area where your mobile node is moving, okay। तो जहाँ पर मोबाइल नोड घूमते घूमते निकल गया, okay। And home agent is the agent which is connected with your home network, foreign agent is the agent which is connected with your foreign network, ठीक है। And if the receiver is not present, then the packet can chase the receiver with the help of its care of address, ठीक है। ये साथ के साथ टर्मिनोलॉजीज आपको आना चाहिए, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना होगा, फिर हर एक को ऐसे एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। हम जितनी देर से इतना भाषण, इतना हम लोग बकवास कर रहे थे, तो वो सबका सब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट इज मोबाइल नोड, व्हाट इज करस्पॉन्डेंट नोड, व्हाट इज होम नेटवर्क, व्हाट इज फॉरेन नेटवर्क, व्हाट इज फॉरेन एजेंट, व्हाट इज केयर ऑफ एड्रेस, एंड व्हाट इज होम एजेंट। ये सारा का सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा सा हम लोग एक फास्ट फॉरवर्ड में इसको थोड़ा कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका मोबाइल नोड क्या है, योर मोबाइल नोड इज एन एंड सिस्टम और राउटर दैट कैन चेंज इट्स पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द इंटरनेट यूजिंग मोबाइल आईपी। मतलब वो अपनी लोकेशन चेंज कर सकता है, अभी यहाँ पर, कल यहाँ पर, कल यहाँ पर, परसों वहाँ पर। सो मोबाइल नोड इज मूविंग, the mobile node keeps its IP address and can continuously communicate with any other system in the internet as long as link layer connectivity is given। मतलब वो क्या करेगा, अपना कनेक्टिविटी। सो फॉर एग्जांपल आई एम कनेक्टेड, ओके। मैं अभी अपने डेटा से कनेक्टेड हूँ, मैं रास्ते में जा रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी कार में जा रहा हूँ, मैं बाइक पे जा रहा हूँ,
नाउ आई एम कनेक्टेड विद माई नेटवर्क, ठीक है, मैं अपने डेटा से कनेक्टेड हूँ। तो यू कैन सी एक आईपी एड्रेस मुझे असाइन हुआ रहेगा, ठीक है। तो जो आईपी एड्रेस असाइन हुआ रहेगा, मैं चलते जा रहा हूँ चलते जा रहा हूँ चलते जा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं चलते चलते मतलब कार में बाइक में मैं चलते चलते मैं नेरुल तक पहुंच गया, सेम आईपी एड्रेस पे मैं चल रहा हूँ, ठीक है। अभी तक नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ आपका? नहीं डिस्कनेक्ट हुआ। जैसे ही आप वाशी पहुंचेंगे, आपका शायद हो सकता है नेटवर्क थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाए, हालांकि होता नहीं है, बट फिर भी बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, कुछ कॉज ऑफ सम रीजन आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ। जैसे ही नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ, वो आईपी एड्रेस आपका गया, ठीक है। हो सकता है, चांसेस है कि आपको वही आईपी एड्रेस दोबारा भी असाइन हो जाए, लेकिन चांसेस कम है, ठीक है। तो आप फिर आप मतलब कि वापस नेटवर्क आया एंड वापस यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट वाया यूर डेटा पैकेट, ठीक है। तो जैसे ही कनेक्ट हुए, वापस से आपको आईपी एड्रेस एक असाइन हो गया, मे बी द सेम और डिफरेंट वॉट एवर, बट आपका जो आपको असाइन होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। So mobile nodes are not necessarily small devices such as laptop with antennas or mobile phones. Router onboard an aircraft can be a powerful mobile node. होता है ना भाई, मैंने तो देखा नहीं हूँ, यूज नहीं किया हूँ, उसके लिए आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, बट पीपल्स हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम वाया एयर, तो में होता है एंड मतलब वहाँ पे जो उनके राउटर्स होते हैं वो कैच करके प्रॉपरली उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो वहाँ पर भी शायद वाईफाई कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। और होती है तभी तो कम्युनिकेशन इतना हो पा रहा है, ठीक है। सो दिस मोबाइल नोड बेसिकली कमिंग टू करस्पॉन्डेंट नोड विद अगेन इज अ बिग नोड, एट लीस्ट वन पार्ट इज नीडेड फॉर कम्युनिकेशन। भाई किस बात, मोबाइल नोड को बात करने के लिए कोई पार्ट तो चाहिए ना, इसलिए हमारे पास में करस्पॉन्डेंट नोड, ठीक है। तो करस्पॉन्डेंट नोड कैन कम्युनिकेट विद मोबाइल नोड, ओके। द करस्पॉन्डेंट नोड रिप्रेजेंट दिस पार्टनर फॉर द मोबाइल नोड एंड द सीएन कैन बी फिक्स्ड और मोबाइल नोड। अब जो करस्पॉन्डेंट नोड है हमारा, इस केस में हम लोगों ने बोला है कि भाई ये फिक्स्ड है, ठीक है, सो दैट हमारा ये समझ में आए कि भाई फिक्स नेटवर्क से, एक फिक्स मशीन से, एक फिक्स नोड से मूविंग मशीन पे कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, ठीक है। इन नेक्स्ट केस यू कैन जस्ट इमेजिन कि भाई चलो मैं भी मूविंग तू भी मूविंग, मैं भी मूविंग तू भी मूविंग, अब कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। तो मैं भी मूव होते जा रहा हूँ, आप भी मूव होते जा रहा हूँ, एंड वी आर कम्युनिकेटिंग। सो दैट्स अ great thing by mobile IP, and because of the mobile IP it is possible to communication between the CN and the MN and MN and MN, ठीक है। तो correspondent node and mobile node का communication भी possible है with the help of this mobile IP, and the home network is the subnet छोटा सा नेटवर्क, छोटा सा एरिया द मोबाइल नोड बिलोंग्स टू, ठीक है। तो भाई आपका जो, तो मैं आपको वापस से डायग्राम में जाके बताता हूँ, ये उसका छोटा सा सब नेटवर्क था, छोटा सा सब नेटवर्क था, छोटा सा एरिया था जहां पर आपका मोबाइल नोड हंसी खुशी रहता था। लेकिन उसके मन में क्या आया, घूमते 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 निकल गया मरीन ड्राइव के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हूँ, तो यू कैन कोरिलेट विद इट। तो आपका मोबाइल नोड का जो लोकेशन क्या है, होम नेटवर्क है। अब वो अलग बात है, होम नेटवर्क पे वो अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग चले गए उसके फॉरेन नेटवर्क में, ठीक है। तो द होम नेटवर्क इज द सबनेट द मोबाइल नोड बिलोंग्स टू। आपका मोबाइल नोड बेसिकली वहीं पे रहता है, लेकिन चूंकि मोबाइल नोड है, दो पैर है उसके पास में, चलते 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 वो निकल गया है। विद रिस्पेक्ट टू इट्स आईपी एड्रेस, नो मोबाइल आईपी सपोर्ट इज नीडेड विद इन द होम नेटवर्क। तो यहाँ पर कोई सपोर्ट रिक्वायर्ड नहीं है इफ इट इज प्रेजेंट इन द होम नेटवर्क इटसेल्फ। मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप प्रेजेंट हो, तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका होम नेटवर्क है, ठीक है, ये होम नेटवर्क है, तो मोबाइल नोड को अगर यहाँ मूव करे, यहाँ मूव करे, तो मोबाइल आईपी की जरूरत नहीं है इसको। यहाँ उसको मोबाइल आईपी की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द होम एजेंट, ठीक है। तो जो भी आने वाला है वो आके पहले होम एजेंट के पास में आएगा, ठीक है। होम एजेंट बोलेगा भाई अंदर ही है, बाहर अभी तक कोई गया नहीं है, ठीक है। तो वो अंदर कहीं पर भी हो मिल जाएगा। लेकिन जहां ये छोड़ के बाहर निकला, तो वहां पर फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये हमारा होम नेटवर्क कहलाता है। फॉरेन नेटवर्क, द फॉरेन नेटवर्क इज द करंट सबनेट द एमएन विजिट। तो ये आपका होम नेटवर्क था, ये आपका फॉरेन नेटवर्क है। तो आपका होम नेटवर्क से फॉरेन नेटवर्क में भाई सब चले गए। ये आपका होम नेटवर्क और ये है फॉरेन नेटवर्क, ठीक है। तो फॉरेन नेटवर्क वो एरिया है
जिसके अंदर आपका मोबाइल नोड अभी फिलहाल विजिट कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। जैसे मैं अभी फिलहाल कहाँ विजिट कर रहा था, मरीन ड्राइव पर विजिट कर रहा था, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, फॉरेन नेटवर्क हो गया, ठीक है। तो आपका मोबाइल नोड बेसिकली अभी फिलहाल यहाँ पर घूम रहा है, तो इसके लिए इसको हम लोग बोलेंगे आपका फॉरेन नेटवर्क है। फॉरेन एजेंट एंड होम एजेंट। तो होम एजेंट पहले देखते हैं। होम एजेंट प्रोवाइड सेवरल सर्विसेज फॉर मोबाइल नोड एंड इट इज लोकेटेड इन द होम नेटवर्क, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आपका जो होम नेटवर्क होता है, इससे अटैच ही होता है आपका होम एजेंट, ठीक है। तो होम एजेंट इज अटैच विद द होम नेटवर्क ओनली, इट प्रोवाइड सेवरल सर्विसेज फॉर दिस पर्टिकुलर होम नेटवर्क। द टनल, ये आगे आएगा। लोकेशन रजिस्ट्री वगैरह, लोकेशन रजिस्ट्री कि भाई देखो मुख्तार कहाँ गया, मरीन ड्राइव गया, ठीक है। इसमें राहुल गया, वो कहाँ गया, चौपाटी गया, और ये बंदा कहाँ गए, तो ये क्या है, एक लोकेशन रजिस्ट्री जैसे मेंटेन करता है आपका होम एजेंट, सो दैट के जो भी बंदा बाहर से आए और वो पूछे कि राहुल कहाँ गया, तो बता सकेगा राहुल कहाँ गया, चौपाटी गया, ओके। सो इन दिस द लोकेशन रजिस्ट्री विल बी मेंटेन बाय देम। और उसके बाद में आते हैं आपके फॉरेन एजेंट पे। फॉरेन, ये सब एजेंट है आपके यहाँ, एजेंट जैसा काम करते हैं। तो फॉरेन एजेंट कैन प्रोवाइड सेवरल सर्विसेज टू द मोबाइल नोड ड्यूरिंग द विजिट टू द फॉरेन नेटवर्क। आपका जो ये आपका होम नेटवर्क, ये आपका फॉरेन नेटवर्क, तो योर मोबाइल नोड हैज मूव टू द फॉरेन लोकेशन राइट नाउ। सो आपका जो मोबाइल नोड है वो अभी यहाँ पर है, ठीक है। ये आपका फॉरेन नेटवर्क है, ठीक है। तो मोबाइल नेटवर्क अभी आपका मोबाइल नोड यहाँ पर है। तो मोबाइल नोड को बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी, कहाँ से, उसको फॉरेन एजेंट से बहुत सारी सर्विस मिलेंगी, 1 2 3 4 जो भी मिलना है सब मिलेंगी। तो फॉरेन एजेंट कैन हैव द केयर ऑफ एड्रेस एक्टिंग एज टनल एंड पॉइंट। ये आपको अभी ये कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसको भी छोड़ो, रहने दो। बस इतना समझ लो कि फॉरेन एजेंट बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है मोबाइल नोड को ड्यूरिंग इट्स विजिट, ठीक, बस। और केयर ऑफ एड्रेस आपको पता है, केयर ऑफ एड्रेस में आपका होम नेटवर्क या आपका फॉरेन नेटवर्क कोई मिलने के लिए आया, तो होम एजेंट ने क्या बताया हम लोग को, होम एजेंट ने कि भाई साहब हमारे साहब यहाँ नहीं है, कहाँ गए अभी, वो ये फला फला केयर ऑफ एड्रेस पे गए। तो आपका जो पैकेट है वो पैकेट आपका वो केयर ऑफ एड्रेस पकड़ के जाएगा, तो केयर ऑफ एड्रेस आपका ये पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से वो कनेक्ट होगा फॉरेन एजेंट को, फिर फॉरेन एजेंट उसको अंदर लेके जाके मोबाइल नोड से मिलवाएगा, ठीक है। तो वो होता है हमारा केयर ऑफ एड्रेस, ठीक है। सो आई थिंक दीज बेसिक टर्मिनोलॉजीज आर क्लियर टू यू। होप सारी चीज आप लोगों को समझ में आई होंगी। इफ यू हैव अंडरस्टूड द थिंग देन प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स आल्सो दैट यू हैव अंडरस्टूड। प्लीज लेट मी नो वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। I took much time. Okay, चलो ठीक है, thank you so much. Please stop the recording.